पैरों के नीचे डाल रहे हैं। और जरा देखिए यहाँ पर ये लोग क्या दर्जा दे चुके हैं इस प्रचारक को। ये प्रचारक को ये लोगों ने ये ए फ्रांसिस, कुछ मिलेगा ना सब मार देगा। तू पागल है क्या? दोष क्यों लगा रहा तू? हर एक बड़े बड़े पास्टर के ऊपर दोष लगाते रहता है। तेरे को कौन अधिकार दिया? बाइबल में लिखा दोष मत लगा। तू हर किसी के ऊपर दोष लगा रहा है। तू जज है क्या? तू जज है क्या? कभी सेवा किया तू? कभी कलीसिया बनाया तू? जाकर कलीसिया बना, सेवा कर और चेला बना। दोष मत लगा तू। और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हाँ, हमें बताएं, हम क्या करें? सांप के बच्चों। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये मेरे जानवरों को भगा रहा है। रोको से, रोको से। This man went through the devil! No! He's a cheat! A fanatic! Woe to you, scribes and Pharisees! Hypocrites all! For you shut up the kingdom of heaven against men! You do not go in yourselves, nor do you let others enter! Blind guides! You strain at a gnat and swallow a camel! You bow before the letter of the law and violate the heart of the law! Justice! Mercy! Good faith! You are like whited sepulchres, all clean and fair without, but within, full of dead men's bones and all corruption. You see these stones, do you not? I tell you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Yours is a house of desolation, the home of the lizard and the spider. Serpents, brood of vipers, how can any of you escape damnation? You shall not see me here again, not until you learn to cry, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." For I and my Father are one and the same. As you all know, I try and tell the truth at all times, even when I know it is not a truth that everyone wants to hear. Tonight we are all happy that Peter has been here with us in Antioch for the past month. And we are glad that Benjamin and others have brought good tidings from James in Jerusalem. But, some of us are engaging in a hypocrisy since Benjamin arrived. Some of us used to eat with the Gentiles in this group, and as soon as Benjamin arrived, they shunned the Gentiles. This is hypocrisy. Who are you speaking of, Paul? You. And Peter. I'm sorry, Peter, but it's true. As soon as James' people arrived from Jerusalem, you pulled back from the Gentiles. You were afraid of criticism because of the controversy over those who are circumcised and those who are not. It's a very serious question. To some, perhaps. To me, it is a mockery of Jesus' teaching. It is the law that believers must be circumcised. Believers in the law? You're abandoning the law? When Gentiles, who do not possess the law, do instinctively what the law requires, they are the law unto themselves. What the law requires is written on their hearts. Many who follow Jesus believe that they must accept the law also. Christ is the end of the law. The end of the law, so there may be righteousness for everyone who believes.
दोष क्यों लगा रहा तू? हर एक बड़े बड़े पास्टर के ऊपर दोष लगाते रहता है, तेरे को कौन अधिकार दिया? बाइबल में लिखा दोष मत लगा। ऑफ कोर्स यस, वी आर नॉट जजिंग बेसलेसली। बाइबल हमको जज करने कहती है, जज विद द राइचियस जजमेंट करके बाइबल हमको कहती है। बाइबल क्या कहती है जज करने के बारे में? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 to 5 आप पढ़ के देखिए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 to 5 पढ़ कर देखिए, वहां पर जज करने का क्राइटेरिया दिया है। वचन ये नहीं कहते कि डोंट जज। पहला वचन लिखा है, क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1। वचन को ऐसे पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी तक नीचे कमेंट में नहीं आया हूँ, मैं कौन सा कमेंट में मुझे ये पता नहीं, काफ़ी पीछे हूँ मैं। एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। हम एक वचन को देखते हैं, मत्ती 27वां अध्याय। मैं बताता हूँ कि ये जज डू नॉट जज वाले गैंग का प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से वो बाइबल पढ़ते हैं और वो तरीका कितना डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ। एक वचन पढ़ते हैं, उसका पहली बार बता रहा हूँ। ये रहस्य आपको और भी जगह मिलेगा। सत्ताईसवां अध्याय 5वां वचन, मत्ती 27वां अध्याय 5वां वचन। सो जूडस थ्रू द मनी इन द टेम्पल एंड लेफ्ट। यूदास कारियत ने उस भवन में अपने पैसे को फेंकर वहां से निकल गया। देन ही वेंट अवे एंड हैंग्ड हिमसेल्फ। वो वहां से गया, वो क्या किया? उसने फांसी ले लिया। अभी नॉर्मल बाइबल पढ़ने वाले क्या पढ़ते हैं? मत्ती की किताब 7वां अध्याय 1 वचन, डू नॉट जज। डू नॉट जज लिखा है, जज मत करो, जज मत करो। यहां पर जूडास कारियत ने पैसे को फेंक दिया, भवन में पैसा फेंक दिया। जूडास थ्रू द मनी इनटू द टेंपल, पैसे को भवन में फेंक दिया और वहां से गया और वहां से जाकर उसने क्या किया? फांसी ले लिया। अब जो लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं ना, मत्ती चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 डू नॉट जज बोल के रोक देते हैं, मतलब डू नॉट जज मतलब डू नॉट जज। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जूडास कारियत ने जो है पैसे को फेंक दिया, मतलब हमको भी फेंकना है। जूडास कारियत ने फेंक दिया ना, हमको भी फेंकना है। देन ही वेंट अवे एंड हैंग्ड हिमसेल्फ। यूदास कारियत गया और फांसी ले लिया, हम भी फांसी ले लें? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ए फ्रांसिस ब्रदर रुको, फ्रांसिस ब्रदर तुम गलत बोलता। क्यों गलत बोलता? क्योंकि वो वचन ये नहीं कहता कि जैसे जूडास कारियत ने पैसे को फेंका, जैसे फांसी लगाया, वैसे तुम करना है करके नहीं बोलता बाइबल। फिर क्या बोलता भैया? उसके ऊपर पढ़ो ना, उसके नीचे पढ़ो ना, क्या लिखा है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये यूडास कारियत के बारे में बताया और नीचे कारण भी बताया, ऊपर कारण भी बताया। तो कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हो, संदर्भ। लेकिन जब आप मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 लेकर आते हो, डू नॉट जज, तब मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 में खत्म नहीं होता। हाँ, सच कह रहे हैं हम। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 में खत्म नहीं होता, आगे भी है। क्या है आगे? पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं हम। वहां पर लिखा है डू नॉट जज और यू टू विल बी जज। तुम न्याय मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी न्याय होगा। अब आगे सुनो, फॉर इन द सेम वे यू जज अदर्स यू विल बी जज। जिस तरीके से, जिस माप से तुम लोगों को नापते हो, उसी माप से भी जो है तुम्हें मापा जाएगा। जिस तरीके से तुम लोगों को न्याय करते हो, वैसे ही तुम्हारा भी न्याय होगा। अब यहाँ पर देखकर दिल ठंडक हो गया, फ्रांसिस न्याय करता है, फ्रांसिस बाइबल तुमको कहता है कि न्याय नहीं करने का। तुमको ये बाइबल का वचन नहीं मालूम क्या? मुझे बाइबल का वचन मालूम है, आपको वो वाला पॉइंट नहीं पता जो हमने मत्ती 27 में देखा, यूदास कारियत वाला। अभी आगे क्या लिखा है? क्राइटेरिया दिया है कैसे जज करने का। देखो कैसे जज करने का बाइबल कह रही है, वार्न कर रही है जज करने से पहले। यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए हिंदी में लिखा है दोष मत लगाओ। दोष लगाना और न्याय करना अलग अलग होता है। दोष लगाने का मतलब क्या होता है कि एक आदमी ने चोरी नहीं किया है, लेकिन उसको मैं बोल रहा हूँ कि तूने चोरी किया है, इसको बोलते हैं दोष लगाना। ठीक है। जज करना क्या होता है? एक आदमी के आँख में जो है कुछ तो लगा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपके आँख में कुछ तो लगा हुआ है, और आदमी बोल रहा है अरे चुप कर भाई, पहला जा अपना ट्रीटमेंट करवा, तू आधा दिख नहीं रहा है, तू आधा गायब हो गया। अरे भाई आधा गायब कैसे हो गया? वो बोल रहा सामने से तुम आधा दिख नहीं रहे हो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। हम कह रहे हैं उनको कि भाई हम आधा गायब नहीं हैं, हम आधा गायब नहीं है। आपके आंख में जो है ना कुछ तो ऐसा लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका आंख का जो दृश्य है वो दृश्य आधा छिप गया है। वो दृश्य आधा छिपने के कारण हम आपको आधा दिख रहे हैं, और आप हमको कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। अरे भैया ये गलत है। तो देखियो क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर, किस प्रकार का क्राइटेरिया कि कैसे जज करना है को। तीसरा वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है व्हाई डू यू लुक एट द स्पेक ऑफ यू। हिंदी में पढ़ देना, मजा आएगा फिर।
समझने में मजा आएगा, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एंटरटेनमेंट। हम यहाँ पर पापा भक्तों को स्क्रिप्चरल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, तीसरा वचन में क्या लिखा है? तू अपने भाई बंधुओं की आंख का तिनका तक क्यों देखता है? क्यों देखता है? देखो फ्रांसिस, क्यों देख रहा है तुम? वचन तो कहता है क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो यहाँ पर उन लोगों को दोष मत, उन लोगों को न्याय मत करो कहा है। यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो न्याय कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मालूम है? वो अपने आंख में एक तिनका रखें। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड रुको, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखें, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसी वक्त हम आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अब ये जो है ना, ये बहुत छोटा सा तिनका है हमारे हाथ में। अरे होना मेरे साथ, एक्सक्यूज मी, होना मेरे साथ, होना मेरे साथ। देख रहे हो ना कितने लोग देख रहे हैं? नेट खत्म हो गया तो कमेंट कैसे किया? हाँ, आप देखो वचन में क्या लिखा है, यहां पर उन लोगों को दोष मत लगाओ करके कह रहे हैं। किन लोगों को? जिनके आंख में जो एक तिनका है, ठीक है? जिनके आंख में एक तिनका है। अब आप भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का। आप एक ट्राई कीजिए। अभी आप जहाँ पर भी बैठे हैं ना, या फिर अपना ईयरफोन का एक वायर ले लीजिए और उसको जो है अपने छोटी सी चीज़, ठीक है, वो अपने आँख के यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है? मेरे तरफ दिख रही है आपको? दिख रही है ना यहाँ पर? बहुत छोटी सी तिनका है। अब ये छोटी सी तिनका आपको दिख रही है, आप क्या बोलेंगे अगर मैं इसको चिपका दिया यहाँ पर? चलो, यहाँ पर मैंने चिपका दिया, आप क्या बोल रहे हैं? ब्रदर फ्रांसिस, तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा हुआ है, इतनी सी, ठीक है? लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे आंख में एक लट्ठा है। आप बोल रहे हो फ्रांसिस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, फ्रांसिस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, फ्रांसिस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, फ्रांसिस तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। तो बाइबल का वचन क्या बोलते हैं मालूम है? कि ब्रदर आप सामने वाले के आंख में जो तिनका है ना, उसको बाद में देखो, पहले तुम्हारे आंख के सामने ये लट्ठा है, इस लट्ठे को हटाओ, लट्ठे को हटाओ और सामने वाले को तिनका निकालने बोलो। तो बाइबल हमको तिनका निकालने बोलती है। ये तिनके से ज़्यादा है पता है, लेकिन समझाने के लिए कैमरा में दिखना चाहिए ना, इसके लिए। कितने लोग देख रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर तिनका है, भाई के आंख में तिनका है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, भाई के आंख में तिनका आप देख रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि ब्रदर फ्रांसिस आप नहीं दिख रहे हो, तो ये आपके सामने लट्ठा है। तो बाइबल कहती है कि तुम लट्ठे को रखकर तुम क्या, बाइबल कह रही है तुम लट्ठे को रखकर सामने वाले के आंख के तिनका को भी देख रहे हो। तो पहले लट्ठा उठाओ, फिर बोलो तिनका है, तो तिनका निकल गया। तो अब मैंने जज नहीं किया, मैंने क्या किया मालूम है? मैंने अपने आंख में लट्ठा हटाया और सामने वाले का तिनका भी निकाला। वापस से समझा रहा हूँ आपको। बाइबल कहती है तू अपने भाई बंधु की आंख का तिनका तब क्यों देखता है, तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। और ये जो लोग हैं ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनका आंख बंद है और सामने वाले को बोल रहे कि डॉक्टर के पास जा, तू आधा गायब है आधा। तो बाइबल कहती है, आगे देखो, जब तेरी अपनी आंख में लट्ठा समाया है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे तेरी आंख का तिनका निकालने दे। ओ कपटी, पांचवा वचन सुनो, ओ कपटी, ओ हिपोक्रेट, ओ कपटी, ध्यान से सुनो, पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल। ध्यान से सुनो, वचन क्या लिखा है? पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा। ध्यान से सुनो, फिर तू ठीक से देख पाएगा और अपने भाई की आंख का तिनका क्या लिखा है? तिनका निकाल पाएगा। वाह, एक भाई सीरियस हो गए और वो चैट में टाइप करके बता दिए कि 129 लोग देख रहे हैं। सरकाज़म, समझ रहे हो वचन क्या कह रहा है? ओ कपटी, तुम किस प्रकार का कपटी? ऊपर 3-4 वचन में लिखा है, वो अपने आंख में लट्ठा लगाए और सामने वाले को बोल रहे कि तेरे में प्रॉब्लम है। पहला अपना लट्ठा निकालो। वचन क्या कहता है? पहले तो अपना लट्ठा हटा, फिर तू क्या कर, तिनका को निकाल। अब लोग मुझे कहेंगे कि फ्रांसिस तुम्हारे अंदर घमंड, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास ही सच है? तुम्हारे आंख में लट्ठा नहीं तुमको लगता है? अगर आपको लगता है कि फ्रांसिस के आंख में लट्ठा है या तिनका है,
तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। कैसे? बाइबल से लाकर। एक्चुअली ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स और मेरे खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स आती है ना, वो कॉमन होती है। कैसे? तुम गलत हो, हमको जो है हिपोक्रेट के जैसा दोष नहीं लगा, हिपोक्रेट के जैसा न्याय नहीं करना है करके बाइबल हमको कहती है। आप समझ गए? आप ये वचन नहीं समझे तो फिर से आगे का और वचन पढ़ो। अब यीशु मसीह को भी ये लोग बोलते हैं कि जज कर रहे हैं। देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, उसी 7th चैप्टर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का 7th चैप्टर देखो, 6ठा वचन में क्या लिखा है? 6ठा वचन में लिखा है, कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो। अरे बाबा, ये लोग तो यीशु मसीह को जाके बोलेंगे कि यीशु मसीह, तुम यीशु मसीह जैसे नहीं हो, तुम लोगों को कुत्ता कैसा बोल सकते हो? यीशु मसीह ने बोला कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो। अब ये कुत्ता बोलने के लिए भी जो है जज करना पड़ता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। इसको आप कुत्ता बोल सकते हैं? नहीं। इसको आप कुत्ता बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? आप बोलेंगे कि ये कुत्ता से अलग दिखता है। तो इस चीज को कुत्ते से क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग दिखाने के लिए अलग समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? जज कर रहा हूं कि ये जज कर रहा हूं, ये कुत्ता नहीं है, फिर वो कुत्ता है। तो इस यहाँ पर भी जजिंग हो रही है। तो यीशु मसीह ने कहा कुत्तों को पवित्र चीज मत डालो। तो क्या कहेंगे अब ये लोग यीशु मसीह को? आगे देखिए, यीशु मसीह ने हमारे ट्रांसलेशन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया है। आपके बाइबल में सही है तो पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है, और सुअरों के आगे अपने मोती मत बिखरो। सुअरों के आगे? ये कैसा अपमानजनक बात बाइबल में यीशु ने कहा? नहीं 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 नहीं, ये यीशु मसीह नहीं हो सकते। हमारे पापा का यीशु मसीह ऐसे नहीं। एक्चुअली जो लोग ऐसे कमेंट करने वाले लोग हैं ना, वो एक बाइबल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मैं आपको कहूँगा कि वो ट्रांसलेशन आप मत पढ़िएगा। वो ट्रांसलेशन का टाइटल है PRV, पापा रिवाइज्ड वर्जन। जैसे RSV, ERV है ना, इजी टू रीड वर्जन, NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, वैसे एक और वर्जन आता है PRV, पापा रिवाइज्ड वर्जन। तो ये पापा रिवाइज्ड वर्जन में जो है ना, ये आगे का वचन छपता नहीं है, वो खाली वो पहले का 3 वचन छपता है। मत्ती 7वां अध्याय वचन 1 से लेकर 3 छपता है, फिर उसके बाद आगे छप जाता है। वो बीच बीच में वो 4-5 वचन मिस्टेक गायब हो जाता है, क्योंकि PRV है ना। तो पापा रिवाइज्ड वर्जन, पापा ने रिवाइज किया है वो वर्जन। तो कहाँ मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब और फेसबुक पर पापा के मुंह से ही मिलेगा। पापा रिवाइज करते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है। पापा क्या करते हैं? पापा बाइबल रखते हैं और उसको अपने आप से रिवाइज करते हैं, फिर बोलते हैं, तो हो गया पापा रिवाइज्ड वर्जन, ठीक है। तो इसलिए वो जो बोल दिया वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। आगे देखो, नहीं तो वे सुअर उन्हें पैरों तले रोन डालेंगे और कुत्ते पलटकर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। ये ट्रांसलेशन बढ़िया लगा मेरे को। कौन सा ट्रांसलेशन? BibleGateway.com में इजी टू रीड ट्रांसलेशन में जाइए, वहां पर क्या लिखा है? और कुत्ते पलटकर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। अब यीशु मसीह को भी ये लोग बोलेंगे दोष मत लाओ, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं। They don't believe in it. It's out of context. I'm a medical doctor. जाकिर नायक भी ऐसे हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन वो थियोलॉजिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आज क्या करें? और सबसे हैरानी वाली बात ये हो गई बाइबल की बात, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक में आते हैं। मैंने बार बार कहा है ना कि लॉजिक के जो दुश्मन होते हैं वो क्रिश्चियनिटी में भर भर के मिलते हैं आपको। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। लॉजिकल प्रॉब्लम बताऊं? ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको कहता हूं डू नॉट जज, मैंने आपको जज करते हुए ये बोला है कि तुम जज कर रहे हो। फंस गए ना खुद में? क्यों? कहा करें? हम ना इसको इस्तेमाल करते हैं ना बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? पापा रिवाइज्ड वर्जन। पापा ने रिवाइज कर दिया, बोल दिया, तो हमने सुन लिया। क्या कहते हैं कि तुम दोष लगाने वाले कौन हो, तुम दोष लगाने वाले कौन हो बोलकर ये हमें दोष लगाते हैं। लॉजिक। तो प्लीज आ जा यार क्रिश्चियनिटी में, प्लीज, तेरी बहुत जरूरत है। तेरे न होने के कारण लोग ऐसे हो गए हैं। प्लीज लॉजिक तो आ जा। लेकिन क्या करें? पापा रिवाइज्ड वर्जन वाले लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका दोष मत लगाओ। तो हेलो, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी प्रोजेक्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप यहीं पर कॉल किए हैं। आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं? ब्रदर, मेरा सवाल है कि जो पास्टर है प्रभु, ब्रदर पास्टर, हाँ हाँ, वो पास्टर एक दूसरे की पास्टर की टांग क्यों खींचता है ब्रदर? कौन से पास्टर ने कौन से पास्टर का टांग खींचा? एक दूसरे की तोहिन भी तो करते हैं, कई देखना पास्टर ब्रदर मैंने।
हाँ, तो किसने किसका टांग खींचा आपने देखा, जरा एक तो नाम बताइए। नाम तो नहीं बताऊंगा सर ब्रदर। तो फिर आप मुझे कैसा पता चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा लाइव शो जो है ना बाइबल के सवाल के जवाब का है। अभी कौन किसका टांग खींच रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात करें। नरूला की भी सुनते हैं, कभी उसकी बजिंदर की भी सुनते हैं। अच्छा। तो ये बजिंदर सिंह, नरूला, ये सारे जो हैं ये झूठे प्रचारक है ना। तो ये झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करना तो एक सच्चे क्रिश्चियन की काम होती है। एक दूसरे को अपने को आदर मान करो, तुम्हें आशीष मिलेगी। कहाँ लिखा है बताएंगे। बाइबल में लिखा। हाँ, वचन बताइए ना कहाँ लिखा है। तुम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आदर दो, क्योंकि हम तो हम सभी परमेश्वर के एक समान बेटा बेटी है ना। हाँ, तो वचन का रेफरेंस बताओ ना, उसको हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कहा गया है। वचन का रेफरेंस बताएंगे। हेलो। हाँ जी, वचन का रेफरेंस बताएंगे तो उसको कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ के बताऊंगा कि वहां पर क्या लिखा है। वचन का रेफरेंस बताइए। ब्रदर ऐसा पढ़ा था लेकिन कंफर्मली याद नहीं है। हाँ, तो वो वचन को ढूंढ के निकालिए और वचन जैसे ही मिल जाएगा रेफरेंस के साथ कॉल कीजिए। उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो वचन झूठे प्रचारकों के साथ कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक मेडिकल शॉप है या फिर किराने का दुकान है, अगर वो किराना वाला जो है चावल में मिट्टी डाल के बेच रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर आपके घर के पास एक किराने वाले के दुकान में चावल में मिट्टी डालकर वो बेच रहा है तो आप क्या करेंगे। हम नहीं लेंगे ब्रदर। और बस आप नहीं लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। बताऊंगा ना सर। अरे ये तो गलत बात है, आप किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्यों उनके बिजनेस को बिगाड़ रहे हैं। ये वो तो गलत चीज है ना। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अगर कोई चावल में मिलावट करेगा तो उसको बताना चाहिए लोगों के सामने। बिल्कुल गलत चीज है। गलत तो गलत है ना ब्रदर। गलत तो गलत है। तो जो इंसान चावल में मिलावट करता है उस व्यक्ति को हम एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वचन में मिलावट करता है, जो चावल खाने से लोगों की पेट खराब हो सकती है लेकिन गलत वचन को सुनने वालों का अनंत काल का जीवन बिगड़ सकता है, तो क्या ऐसे लोगों के बारे में हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। ब्रदर तो ऐसे मतलब वो होता है। कैसे होता है। हाँ जी, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, थैंक यू। नहीं बोलिए तो आगे जी। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना, मतलब आप बताइए फिर। मैंने क्वेश्चन ये था कि एक पास से दूसरे पास की टांग क्यों खींचता है। आप यूँ बोल रहे हो अगर चावल में मतलब मिट्टी मिला तो ऐसे नहीं खाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए वो भी ना लें। जी, तो वैसे ये जो प्रचार करते हैं ये प्रचार करते हैं, ये अनंत जीवन के लिए नहीं करते हैं। जी, सही समझे आप। जो वचन को मिलावट करता है जिसके वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बिगड़ सकती है, तो जब हम चावल वाले को खुलासा कर सकते हैं, अगर ऐसे लोगों का खुलासा नहीं करेंगे तो क्या होगा। उस समय में आप मत्ती के किताब 7वां अध्याय वचन 21 से लेकर 23 में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर लिखा है ना कि बहुत सारे लोग यीशु के सामने कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया वो किया। हो सकता है ये वही सारे लोग होंगे जिन्होंने चमत्कार किया होगा या फिर उनके पास जाने वाले होंगे और उनको यीशु देखकर बोलेगा अरे मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ। नहीं, हम तो गाना गा रहे थे, हम तो गीत गा रहे थे। अरे तुम मिलावटी गाना गा रहे थे ना, इसलिए यीशु पहचाने नहीं करके बोल देंगे फिर मत्ती 7:21-23 में। तो हमको मिलावटी चीज़ों से बचना चाहिए। बाइबल ये भी तो बताती है विश्वास कर और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, अनंत जीवन उसी को मिलेगा। क्या फिर वो उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। सही बात है। वहां पर क्या लिखा है, बपतिस्मा लो और क्या करो। यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती के किताब 28वां अध्याय 19वें वचन में यीशु ने क्या लिखा कि तुम जाकर क्या करो, उनको चेला बनाओ और जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो उनको सिखाओ, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर सिर्फ बपतिस्मा से स्वर्ग नहीं जाते हैं। यीशु मसीह ने जो जो बातें सिखाई हैं वो सीख कर चेला बनना चाहिए। अगर वो सीख कर चेला ही नहीं बना तो वो कैसे जा सकते हैं स्वर्ग में, बताइए। चेला बनाना ब्रदर। हाँ, तो चेला बनेंगे तो ही तो बपतिस्मा का मतलब होता है ना। बपतिस्मा तो कोई भी ले सकता है। एक मुसलमान भी बोलेगा कि मैं बपतिस्मा ले लेता हूँ। बपतिस्मा बड़ी बात नहीं है ना। बपतिस्मा लेने के बाद उसकी जिंदगी वचन के अनुसार है तभी तो वो चेला बनता है। चेला ही तो यीशु के साथ जाएगा स्वर्ग में। अगर किसी ने ब्रदर किसी को चेला बनाया था, क्या उसको देख रेख भी करेगा। हाँ, जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपका बड़ा भाई बन गया, ठीक है, मान लीजिए आप मेरे छोटे भाई बन गए। अब मुझे पता नहीं कि आप मुझसे छोटे या बड़े नहीं, मान लेते हैं कि आपका मैं बड़ा भाई बन गया।
जब मैं आपका बड़ा भाई बन गया, क्या मैं खाली नाम के लिए भाई बनकर रहूंगा या फिर आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा मुझे, कि भाई के लिए जो जो जिम्मेदारी होती है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, आपको बड़े भाई की जो है वो निभानी पड़ेगी। हाँ जी, आपको बड़े भाई का किरदार निभाना पड़ेगा। सही बात है। तो वैसे ही जो है जब भी एक पास्टर होते हैं ना, तो पास्टर को उनका किरदार निभाना पड़ेगा। पास्टर का किरदार क्या है ना, बाइबल में लिखा है एक वचन में, मैं एक वचन बताता हूँ आपको, वचन आपको मिलेगा 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 वचन में, एक पास्टर को कैसा रहना चाहिए करके प्रेरित पॉल कहते हैं। वहां पर लिखा है, तुम पूरी कोशिश करो कि तुम क्या करो, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से क्या करो, प्रस्तुत करो। पूरी कोशिश से परमेश्वर के वचन को आप सही तरीके से प्रस्तुत करो करके 2 तिमोथी के किताब में 2 अध्याय में वचन 14 से लेकर आगे तक लिखा है। आप पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा। जब ये व्यक्ति इस चीज को नहीं करता है तो उसको तो हमको मिलावटी व्यक्ति बोलना चाहिए, तो उसके तो दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने, ठीक है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो देखो भाई, हम यहाँ पर किसी का टांग नहीं खींचते हैं। जब आप चावल में मिलावट करने वाले व्यक्ति को एक्सपोज कर सकते हैं, तो हम वचन में मिलावट करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं? तो कॉल करने से पहले जरा वचन को रेफरेंस निकाल कर कॉल कीजिएगा, हम उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं।